श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 43 42 sorry 42 and 43 they are combined verses. यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यदस्तिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति. So men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas. Yamimam pushpitam vacham. Pushpitam is flowery, vacham is words. Pravadanti avipaschitaha. Avipaschita is one who has poor fund of knowledge. So men of poor fund of knowledge or small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities. Okay, these are the so-called followers of the Vedas. Vedavada Rataha. Na anyat. They feel there is nothing beyond this. Astiti Vadinaha. They say. Who say? Men of poor fund of knowledge. Who are Vedavada Rataha. Kamatmanaha Swargapara. Kamatmana only they are full of desires to fulfill for sense gratification. Swargapara want to attain heavenly planets. जन्म कर्म फल प्रदान. अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छा कर्म फल प्राप्त करके. क्रिया विशेष, बहुत सारे विधि विधान करना, बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करना लोगों को दिखाने के लिए. बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति. और उनकी गंतव्य क्या है? भोग ऐश्वर्य. सो बीइंग डिजायरस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. So men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. So, purport by Srila Prabhupada. Person in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to fruitive activities recommended in the Karma Kand portion of the Vedas. वेदास में भी सेक्शंस है, इसमें मेनली कर्म कांड पर. And that these people are attached to this. So they do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available, and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially Jyotishtoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. वेद में कर्मकांड सेक्शन, मेनली इट इज कर्मकांड. दैट्स वाई कृष्ण एडवाइज दैट वन. अर्जुन को कह रहे हैं कि अब तीनों वेदों के परे हो जाओ. तीनों वेद जो है तीन गुणों के अंदर है. त्रय गुण है विषय वेद, निस्त्रय गुण है भवार्जुन. आपको मिलेगा ये वर्स अभी यही चैप्टर में. सो शुद्ध सत्व गुण में व्यक्ति को आना है तो वेद के सिद्धांत से भी व्यक्ति को परे होने पड़ेंगे. तो कई बार वेदों में यज्ञ करने के लिए अनुमति दी गई है. फलाना देवता का यज्ञ करेंगे तो
ये प्राप्त होगा, उस देवी की पूजा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देवताओं की पूजा नहीं बल्कि इंद्र तृप्ति की पूजा होती है। जब तक इंद्र तृप्ति करेंगे तब तक उस देवता की पूजा होती है। तो कुछ प्राप्त करने के लिए, वांछित फल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उन देवताओं के पास जाता है और उनको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करता है। जिस प्रकार कोई सामान लेने के लिए जाता है, कुछ खरीदना है तो फिर उस दुकान के पास जाता है, तो दुकान वाला जो होता है उसको पैसे देने के बाद उसको चीज़ें मिलती, उसी प्रकार यहाँ पे देवताओं की वह प्रेममय सेवा नहीं बल्कि भोग इच्छा को तृप्ति करने के लिए यज्ञ आदि करते हैं। और कई बार ऐसे यज्ञ बहुत ही बड़े पैमाने में किए जा सकते हैं, और कई बार इसमें स्टेटस भी होता है। स्टेटस को होता है कि लोगों को दिखाना कि हम कितना बड़े धार्मिक हैं। भगवान कृष्ण इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ऐसे कहते हैं वेदवाद रतः, अपने आप को वेद के मान्यता, वेद मानने वाले, वेद के संस्कृति को मानने वाले लोग तो कहते हैं, पर फिर भी वेद के सार को नहीं पकड़ पाते। इनके मत से स्वर्ग जाना आदि, अच्छे कुल में जन्म लेना, यही गंतव्य है अगले जन्म में भी। तो प्रश्न ये उठता है कि वेद व्यास जी ने ऐसे क्यों संकल्प किया, ऐसे क्यों संग्रहित किया है ऐसे शास्त्रों को, क्यों लिखा गया है कि जहाँ पे देवताओं की पूजा करने से व्यक्ति इसमें अटक सकता है, यहाँ पे भगवत भक्ति नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जो है भोग ऐश्वर्य की इच्छा से जब देवताओं की पूजा करते हैं तो वो और आसक्त हो जाते हैं भोग इच्छा से, भोग वांछाओं से। अब कई लोग कर्मी लोग देखेंगे, देवताओं की पूजा तो करेंगे, दुर्गा माता की पूजा करेंगे अथवा शिव जी की पूजा करेंगे, पर वो भौतिक आसक्ति छूटेगी नहीं और उनकी बढ़ती रहेगी, और वो धन की लालसा बढ़ाते रहेंगे। तो ये भगवान वेद व्यास जी ऐसा क्यों करते हैं जिसमें व्यक्ति और बंधन में फंस जाए। तो वेद व्यास जी के करने का कारण है यहाँ पे ऐसे, क्योंकि कई लोग जो है भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु को डायरेक्टली उनकी शरण नहीं ले सकते, या वो इच्छा नहीं करेंगे, तो उनको फोर्स नहीं है, तो उनको अनुमति दी जाए थी कि आप भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करना चाहते अथवा कृष्ण की भक्ति नहीं करते, तो कम से कम आप देवताओं की पूजा करें। देवताओं की पूजा भी क्यों करेंगे, अगर कोई व्यक्ति अगर विष्णु की पूजा नहीं करता है तो क्या मिलेगा उसको देवताओं की पूजा से। तो पर क्योंकि अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है, अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए तुम इस मार्ग को अपनाओ, धार्मिक मार्ग को अपनाने के लिए कहते हैं। तो जिस प्रकार कोई बच्चा है जो मेडिसिन नहीं खाता है तो उसको चॉकलेट दिखा के मेडिसिन खिलाता है, उसी प्रकार वेद व्यास जी इस चॉकलेट को दिखा रहे हैं इंद्र तृप्ति के, और कैसे वैसे ये न के न प्रकारे न व्यक्ति धार्मिक बन जाए या वैदिक धर्म के अंदर आ जाए, ना कि वो नास्तिकवाद का भाग बने। इसलिए ऐसे यज्ञ आदि, ताकि ये प्रलोभन है जिस प्रलोभन से व्यक्ति भक्ति करने लगे। जैसे कोई डिस्काउंट ऑफर दिया तो व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदता है। पहले होता था कि बालक लोग, छोटे बच्चे लोग होते थे कि वो कुछ वेफर्स का पैकेट होता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक का कुछ फ़ोटो का चीज़ होता था, कार्टून का, या कुछ भी चीज़ मिलती है, या कभी कभी इरेज़र मिलता है, या कुछ फैंसी इरेज़र मिलता है, या फिर फैंसी कुछ कार्टून मिलता है कोई प्रोडक्ट के साथ, या कुछ अ, तो बच्चे लोग होते हैं उनको वो चाहिए रहता है, वो फैंसी चीज़ चाहने के लिए वो पैकेट लेते हैं लेस का। तो क्योंकि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को पता है कैसे व्यक्ति को फंसाना है, तो कुछ ना कुछ फैंसी। उसी प्रकार वेद व्यास जी भले ही जानते हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लोग स्वार्थी होते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए, ऐसे इंद्र तृप्ति का माध्यम बना के धर्म में आ जाओ, धर्म के अंदर आ जाओ। ठीक है, तुम्हें इंद्र तृप्ति करनी है तो धार्मिक तरह से भी, धर्म का अंदर भी इंद्र तृप्ति कर सकते हो, धर्म के जुरिस्डिक्शन के अंदर। सो इसलिए वेद व्यास जी ने ये किया। पर प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो गया कि जो उद्देश्य था कि व्यक्ति ग्रेजुअली ही विल बी प्यूरिफाइड, वो धर्म पालन जैसे ही करने लगेगा तो वह कुछ दिनों के बाद वह शुद्ध हो जाएगा, फिर वो भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा। जैसे किसी को मांसाहार खाने के लिए बहुत आदत है कि वो मांस के बिना नहीं रह सकता, तो बलि देने की अनुमति दी गई है काली माता की पूजा करके हुए। अभी ये दी है अमावस के रात्रि में करना है, और ये हर बार तो नहीं, हर दिन तो नहीं कर सकता, तो ये इसलिए दी है कि व्यक्ति तंग आ जाए कि खुद बलि देना,
खुद काटना, फिर खुद पकाना और फिर खुद खाना, ये बहुत जटिल कार्य हो जाएगा तो व्यक्ति इससे उब जाएगा एक दिन और फिर वो बंद करने या कम कर देगा। पर परिणाम विपरीत होने लग गया कि व्यक्ति अपनी जीभा की तुष्टि के लिए और मांस खाने लग गए। जैसे यज्ञ एक अनुमति दी गई थी, पर यज्ञ के नाम पर कई जानवरों की हत्या की गई। इसलिए गौतम बुद्ध का अवतार होता है जिसमें वो कहते हैं अहिंसा परधर्म। तो ऐसे विपरीत स्थिति होने की वजह से व्यक्ति नीचे ही गिरता चलता है। यहाँ पे भगवत गीता में यही कृष्ण कह रहे हैं कि भोगैश्वर्य प्रसक्ताना में अगला श्लोक होगा। इसमें व्यक्ति भोग ऐश्वर्य प्रसक्त होने की वजह से वो दृढ़ता से भक्ति कर ही नहीं पाएगा। तो ये किया था एक उद्देश्य से, पर वो उद्देश्य से विपरीत चीज़ें होने लग गई। और इसलिए जो कम बुद्धिमान व्यक्ति लोग हैं वो ऐसे ही चीज़ों की अभिलाषा करते हैं, स्वर्ग में इत्यादि जाना और इंद्रिय तृप्ति करना। So next paragraph, in the Karmakand section of the Vedas it is said apama somam amrita abhuma and akshayam havai chaturmasya yaginah sukritam bhavati. In other words, those who perform the 4 month penances चातुर्मास की तपस्या जो करते हैं, become eligible to drink the somarasa beverages to become immortal and happy forever. वैसे तो इमॉर्टल सोमरस पी के कोई इमॉर्टल नहीं बनता है, पर उसको इतनी आयु मिलती है बड़ी कि स्वर्ग में कि वो प्रतीत होता है कि वो अमर हो गया। वैसे तो अमर नहीं हो सकता जब तक वैकुंठ नहीं जाएगा। और सदैव के लिए आनंद, मतलब स्वर्ग में अभी आनंद का ही भोग करेंगे। Even on in this earth, some are very eager to have somaras to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage. उनको मुक्ति से कोई लेना देना नहीं है। ना धर्म करते हैं अर्थ प्राप्त करने के लिए, और अर्थ का उपयोग कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, धर्म अर्थ काम, पर मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। Such persons have no faith in liberation from material bondage and they are very much attached to the pompous ceremony of Vedic sacrifices. आप किसी को बोलेंगे कि देखिए हरि नाम कीजिए, हरि नाम से घर में शुद्धिकरण हो जाएगा, हरि नाम से ही सभी दुविधाएं निकल जाएंगी, लोग मानेंगे नहीं। उनको जब तक कोई धुआं करने वाला यज्ञ नहीं करेंगे उनको नहीं लगता कि कुछ धार्मिक कार्य हुआ है। तो थोड़ा अच्छी तरह से धुआं आना चाहिए घर में, पूरा थोड़ा अग्नि दिखनी चाहिए और थोड़ा जोर जोर से मंत्र उच्चारण होने चाहिए, जिससे व्यक्ति को लगता है कुछ तो धार्मिक हुआ है। ये ऐसे कम बुद्धि वालों का काम है। दे आर जनरली सेंशुअल, दे डू नॉट वांट एनीथिंग अदर देन द हेवनली प्लेजर्स ऑफ लाइफ. It is understood that there are gardens called Nandan Kanana in which there is good opportunity for association with angelic beautiful women and having a profuse supply of Somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of the material world. उनको भौतिक जगत का ईश्वर बनना है हर किसी को, और उनको इंद्रिय तृप्ति करनी है। इंद्रिय तृप्ति में धन तो आता है, प्रतिष्ठा भी आती है, साथ में स्त्री भोग करना अथवा स्त्रियों को पुरुष भोग करना, तो ये सब इंद्रिय तृप्ति में आ जाता है। सो ये इंद्रिय तृप्ति में आने की वजह से व्यक्ति धर्म भी करता है इसी चीज़ों के लिए। और जैसे स्वर्ग में है नंदन कानन जिसमें कई अप्सराएं होते हैं, तो ये सब का वर्णन कर्मकांड सेक्शन में दिया गया है वेद शास्त्र में। और इससे वो प्रलोभित होकर उनको ये बहुत आकर्षक लगता है, बिकॉज फॉर लस्टी पर्सन लस्टी टॉपिक्स विल अल्यूर, इट्स सिंपल। तो इसी सेक्शन से वो आकर्षित होके व्यक्ति समझता है कि यही गंतव्य है जीवन का। इसलिए बाकी पंथ में आप देखेंगे, चाहे वो इस्लाम हो चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, इनमें भी ये सेक्शन, इनमें भी ये उनके लिए तो यही पूरा गंतव्य है। एटलीस्ट वैदिक शास्त्रों में तो ये एक सेक्शन है ये, पर उनके लिए तो यही गंतव्य है, टू गो टू हेवन, जन्नत में जाना। तो ये सब वैदिक शास्त्र में भी इसके सेक्शन है। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन?
ओके, वेदास में अगर ऐसा है कि वेद में सभी कुछ सब कुछ परफेक्ट है, ये सब कुछ परफेक्ट है। जिस प्रकार वेद शास्त्र कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म है और ये अपौरुषेय है, कोई साधारण व्यक्ति ने थोड़ी लिखे गए हैं या बोले गए हैं। बोले भी साधारण व्यक्ति ने, लिखे भी साधारण व्यक्ति ने नहीं। व्यासदेव जी ने लिखे हैं, जो भी व्यास है विष्णु रूपा शक्तावेश अवतार भगवान के। अगर वो कुछ लिख रहे हैं तो परफेक्ट है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये लीला का भाग होता है जब नारद मुनि भागवतम में व्यासदेव को डांट रहे हैं, क्योंकि भागवत को प्रकट करना है, इसलिए ये सब लीलाएं आती हैं। तो कोई भी, जिस प्रकार आप देखेंगे कि गवर्नमेंट क्रिमिनल्स के लिए एक डिपार्टमेंट है, क्राइम डिपार्टमेंट होता है, क्रिमिनल की सज़ा दी जाती है, वहाँ पे आप देखेंगे सुविधाएं नहीं होती अंदर। ओके, जिस प्रकार हम बाहर सुविधाएं को उपभोग करते हैं वैसे वो जेल के अंदर नहीं होंगी, पर जेल उसके लिए तो बना गया है। अब जेल में परफेक्ट सुविधाएं देने लग गए तो मतलब क्या हो गया जेल का फिर? तो ऐसे नहीं कि जेल इम्परफेक्ट है, नहीं, जेल भी परफेक्ट है अपने हिसाब से। क्रिमिनल्स के लिए ऐसा जेल बनाया गया है ताकि उनके लिए वही परफेक्ट है, उनको सज़ा मिलनी है ना। अब वहाँ पे परफेक्शन लेके क्या करेंगे? जेल वाले लोग आंदोलन करेंगे, बोलिए देखिए हमारा टॉयलेट क्लीन नहीं है, हमको रोटी कच्ची मिलती है, तो कौन सुनने वाला है उनका? तो उसी प्रकार एक कर्मकांड सेक्शन भी परफेक्ट अपने आप में, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए जो नहीं सुनेंगे भगवान का, भगवान से शरणागत नहीं होंगे, उनके लिए सज़ा देने के लिए भी ये विधियाँ हैं। और कुछ तो आनंद मिले उनको, नहीं तो जिएंगे कैसे? कोई जीव जी नहीं सकता बिना आनंद का। कुछ तो आनंद मिलना, भले टेम्परेरी क्यों ना हो। संसार में आया है आनंद भोग भोग करने के लिए, भगवान की इतनी दया है वो कुछ तो आनंद भोगे, पर वो आनंद के भोगने के चक्कर में कई बंधन में फंसता है। ये फंसा जाता है क्योंकि क्रिमिनल है ना, उसको बेड़िया में बांधना है। तो इसलिए ये अपने आप में परफेक्ट है, कर्मकांड सेक्शन अपने आप में परफेक्ट है। किन लोगों के लिए? जो स्वर्ग के अभिलाषी हैं, जो कर्मी हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो भगवान की अधिष्ठाता, भगवान की सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान को निर्देश को पसंद नहीं करते हैं, वो उल्लंघन करना चाहते हैं, उनके लिए कर्मकांड सेक्शन है। कम से कम बाबा तुम थोड़ा तो धार्मिक हो जाओ। तुम कामी हो तो कम से कम विवाह करके अपनी कामना की पूर्ति करो, तुम कुछ भी मत करना। पर आप देखेंगे कम ये भी नहीं आजकल मानते, ये भी धर्मों को भी नहीं आजकल माने, तो वो भी छोड़ दिया आजकल। बहुत थर्ड डिग्री लोग हो गए, एकदम थर्ड क्लास लोग। तो इसलिए कर्मकांड सेक्शन इम्परफेक्ट नहीं बोल सकते आप। पर आप भागवत में देखेंगे कि धर्म प्रोज्जित कैतवत्पर परम निर्मत्सनाम सतान, कि परम धर्म की बात जब होती है, जब परम धर्म की बात होती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। फिर इवन वेद के सिद्धांतों को भी ये किया जाता है, निषेध किया जाता है कि परम धर्म परम निर्मत्सन वेदम वास्तव अस्तम शिवादम तापत्र श्रीमद् भागवतम महामुनि कृत्य किम वा परमेश्वर है। तो भागवत महामुनि ने लिखा गया क्या? महामुनि ने बाकी सब नहीं लिखा था, वो भी लिखा है ना उन्होंने, पर श्रीमद् भागवत भी महामुनि ने लिखा है। और उन्होंने कभी लिखा है? मैच्योर स्टेज में लिखा है। इसलिए किम्वा पर ईश्वर, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि बाकी वेस्ट है क्या? नहीं, बाकी वेस्ट नहीं है, पर बाकी आवश्यकता नहीं। किसके लिए? जो भागवत धर्म को अपनाया है। बाकी भी ज़रूरी है ना, जैसे ABCD तो ज़रूरी है ना। आप ये बोले, पर अभी ABCD पढ़ना है PhD वाले की ज़रूरी नहीं है, वो क्रॉस गया, पालन कर, इसको तो ऑलरेडी वो सीख लिया सब पहले ही। भगवत गीता में कृष्ण बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब अभी तक जो धर्म बताया कृष्ण ने अर्जुन को, वो सब थोड़ी वेस्ट थे। कर्मयोग वेस्ट नहीं है ना, ज्ञान योग वेस्ट है ना, ध्यान योग वेस्ट है। जैसे जैसे लोग रहेंगे, मति रहेगी, उनको वो पसंद आएगा। भगवान कृष्ण सबको अपना रहे हैं ना। ठीक है, मेरे भक्ति करने वाले ही तुम मेरे पास रहो, बाकी सब गए तेरे, उनको कुछ लेना देना नहीं। ऐसे तो नहीं कृष्ण कर सकते, पिता है। बच्चे कैसे भी हो चाहते हो अपने आप को, बच्चों को पसंद करते। तो भगवान जब कहते सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब अगर तुमको परमा भक्ति चाहिए, मेरा परम धाम चाहिए, तो फिर तुमको सब धर्मों को त्याग करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार कर्मकांड सेक्शन भी परफेक्ट है अपने आप में, बट किनके लिए? क्रिमिनल मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, उनके लिए। नेक्स्ट वर्स। यस यस, आचार्य कमेंट्रीज था, थैंक यू, मुझे याद दिलाया आपने। इस सेक्शन का
आचार्य कमेंट्री से हम थोड़ा समझते हैं। सो ये कौन सा 42 और 43 है ना, 42-43, ओके। So Vishwanath Chakravarti Thakur says that this verse speaks of the persons with wavering intelligence involved in sakam karma, who are very dull-witted. They say that there is no God other than this, नान्यत अस्तिति। ये सकाम कर्मी ये कॉन्सेप्ट है, आप कई बार ये शब्द सुनेंगे, निष्काम कर्म योग या फिर सकाम कर्मी। सकाम कर्म योग नहीं हो सकता कभी, सकाम कर्मी हो सकता है, क्योंकि सकाम मतलब वो कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म करना। ओके, ऐसा व्यक्ति को सकाम कर्म कहता है। सकाम कर्मी लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। मतलब किसके लिए काम करता हूँ? परिवार के लिए काम करता हूँ। किसके लिए काम करता हूँ? अपनी हिंदी तृप्ति के लिए करता हूँ। तो ये सकाम कर्मी। श्री रामन आचार्य सेज दैट द नॉलेज ऑफ द सेल्फ विल नॉट अराइज इन सच माइंड्स। ज्ञान आत्म साक्षात्कार का विज्ञान इनमें बुद्धि को भेदेगा ही नहीं, क्योंकि सकाम है ना, कामनाओं की वजह से व्यक्ति की बुद्धि ढक जाती है। So in the minds of these persons there cannot arise the mental disposition that look on all Vedic rituals as means for liberation based on the determined conviction about the real form of the self. It may be questioned why the Vedas, which have more of love of jivas than thousands of parents and which are endeavoring to save the jivas, should prescribe in this way rites whose fruits are infinitesimal and which produce only new births. It can also be asked if it is proper to abandon what is given in the Vedas. So पॉइंट यहाँ पर रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि जो वैदिक रिचुअल व्यक्ति जब कर रहा है, इसकी इतनी बुद्धि नहीं है कि वो समझता है सभी वेद की जो वेद की जो रीतियाँ हैं, विधि हैं, उसका एक ही सार है कि भगवान विष्णु को स्मरण करना। आप कोई भी यज्ञ कर लीजिए, यज्ञ में पहली आहुति विष्णु को जाती है, तो इसमें तो उसने बुद्धि लगानी चाहिए ना कि विष्णु को क्यों आहुति जाती है। जैसे गणेश जी की पूजा करते हैं लोग, गणेश जी की पूजा करते हैं, आखिर में तो भगवान कृष्ण का ही सब समर्पण करते हैं। क्यों? वो सब पंक्तियाँ भी बोलते हैं, काये न वाचा मन से इंद्रिय, तो वो सब नारायण से समर्पयामी, सब कुछ समर्पण नारायण को। क्यों? बुद्धि नहीं लगाते, सिर्फ बोलते जाते, बिना मतलब के सिर्फ विधि को पालन करना न सार जानते हुए, क्योंकि कामना पूर्ति करने के लिए वो सब कर रहे हैं ना। उनको सिर्फ कामनाएं दिखती है, बस उनको देवता नहीं दिख रहा है। वो देवता जो देने वाला है ना, वो चीज़ें दिखती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पिता के पास जाता है, इसलिए नहीं कि पिता से प्रेम करता है, पिता से जो प्राप्त होने वाली प्रॉपर्टी इसलिए में वो सेवा कर रहा है उसकी। जिस दिन बोलेंगे कि मैं प्रॉपर्टी चैरिटी को दे दूंगा, तो वो सेवा करना बंद कर देता है। तो प्रेम पिता पे नहीं, प्रॉपर्टी पे है, तो उसको पिता नहीं दिखते, उसको बोलते हैं कि प्रॉपर्टी के ओनर दिखते हैं उसको। उसी प्रकार यहाँ पे वो, इसलिए उनको सही जो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उनके बुद्धि में कभी भेज नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कामनाओं से बहुत भरे हुए हैं ना, इसलिए उनको ये नहीं समझता कि सभी जीवों, सभी लाखों माता पिताओं से भी बढ़कर प्रेम भगवान करेंगे। और ये जो मतलब लाखों माता पिताओं से प्रेम नहीं दे सकते, उसे कई गुना ज़्यादा प्रेम व्यक्ति को भक्ति में मिल सकता है, भगवान के सानिध्य में मिल सकता है। ये नहीं समझते, वो एक सूक्ष्म फल के लिए, ऐसे फल के लिए जो अंतवत्त फलम तेषां भवति अल्पमेधसाम्, जिस फल को अंत हो जाएगा, लाइक बबल्स थोड़ी देर के लिए आते हैं और बालक इतना आकर्षित हो जाता है उससे, इतना एक्साइटेड हो जाता है, पर थोड़ी देर में वो फूट जाते हैं। उसी प्रकार ये कामनाएं हैं, ये जो फैसिलिटीज़ देवताएं देते हैं, जो वर देते हैं, ये थोड़ी देर के लिए आनंद दे सकता है, ये बुद्धि नहीं लगाते। ये रामानुजाचार्य इस कमेंट्री में कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी is saying that why do they talk such nonsense? Because they are so dull, because they are of dull wits, क्योंकि इनकी बुद्धि नहीं है ना, इसलिए वो ऐसे से बोलते हैं कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, स्वर के ऊपर कुछ नहीं है। The reason for the dull wits is intelligence is that they are enamored by the panegyric euphemisms of the scriptures. Words like everlasting happiness, eternal life, resurrection and immortality are very appealing to those of limited understanding. With these thoughts motivating them, they perform every action of the attainment of these goals, believing they can be attained independent of the mercy of the Supreme Lord. प्रॉब्लम क्या, अगर उनको क्यों ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है? क्योंकि
वेद, ऐसे वेद के कर्मकांड सेक्शन में ना कभी कभी इतने बड़ा चढ़ा कर बोला गया है ना, क्योंकि बहुत बड़ा चढ़ के बोलते हैं कि देखो तुम अमर हो जाओगे सोमरस पी के, तुमको अनंत सुख की प्राप्ति होगी, तुमसे सबसे बड़ी सुंदरी मिलेगी। तो ये सब क्या है ना, भले ही नश्वर है, स्वर्ग भी नश्वर है, स्वर्ग भी एक बार विनाश हो जाए, पर उसकी आयु इतनी बड़ी है व्यक्ति की इसमें, स्वर्ग में तो प्रतीत होता है कि वो अमर है, पर वो अमर नहीं है। अगर अमर होता तो हिरण्यकशिपु अमर बन जाता था ना। ब्रह्मा जी से वर तो मांगे थे, तो ब्रह्मा जी कहते कि मैं ही अमर नहीं, तुमको क्या अमर बनाऊं। पर क्योंकि ये छलावा है, ये छल कर रहे हैं, किससे? कर्मी लोगों से छल किया जा रहा है इसमें, जानबूझ के छल किया जाता है। जैसे कहते हैं ना कि देखो देखो चॉकलेट खाने से तुम्हारी तबियत ठीक हो जाएगी। अभी बच्चों को सही में लगता है चॉकलेट खाने से तबियत ठीक हो जाएगी, चॉकलेट के पीछे मेडिसिन खिलाना है ना। तो वो बाद में इतना सोचता है कि चॉकलेट खाने से ही ठीक हो जाएगा, तो हर बार चॉकलेट ही खाएगा फिर वो। तो ये हर्ष इसका होता है। इसलिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि वो सभी एक्शन जो कर रहे हैं उनको समझता है कि जो भी फल उनको प्राप्ति होती है ये भगवान से स्वतंत्र होकर फल प्राप्ति हो रही, जो कि गलत है। जो देवताएं जो भी फल देते हैं वो भगवान मयेव निहितान हितान, कृष्ण कह रहे गीता में कि मेरे द्वारा दिए गए फल है वो। मैं जब तक परमिशन नहीं देंगे देवता भी फल नहीं दे पाएंगे आपको। तो कोई भी देवता स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकता। ओके, केशव कश्मीर इज सेइंग दैट व्हाई इज दैट द स्कॉलर्स we have studied the Vedas, who have studied the Vedas, fail to possess the resolute intelligence। व्यवसायत्मक बुद्धि उनके पास क्यों नहीं आता है, कन्विक्शन क्यों नहीं आता है भगवान के प्रति उनका? It is because they could not comprehend the essence of the Vedic scriptures and subsequently they missed understanding the true purport of the Vedas। बहुत सुंदर लिखे केशव कश्मीर जी ने, बहुत एकदम सटीक चीज़ लिख दिया। उन्होंने कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वो वेद के सार को ही नहीं ग्रहण कर पाते। वो इतने वेदों में खो जाते हैं कि सार को ग्रहण नहीं कर पाते। एंड लॉर्ड कृष्ण एम्फसाइजेस विद द वर्ड अविपश्चिता मीन्स द इग्नोरेंट हु आर नॉट नॉलेजेबल आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर डिस्क्रिप्शन इन द वेदास। Even as a beautiful flowery creeper may be attractive although it is poisonous, why is this so for them? कोई व्यक्ति अच्छे फूलों को देखकर भी, भले ही फूल विषेरी होगा, विष है इस फूल में, फिर भी व्यक्ति आकर्षित हो सकता है, तो ज्ञान नहीं है तो ठीक तरह से। It is because their minds are obsessed by desires due to addiction to material pleasures experienced by contact with the senses of taste, touch, seeing, hearing and smelling। विषय वस्तु के आवेश की वजह से व्यक्ति ये कर बैठता है। इसे कई बार होता है ना, व्यक्ति को पता है कि गलत है। To watch pornography is bad, it will contaminate your mind, it make you addict, but still people cannot stop that, they're addicted to it। To have cigarette is bad for your health। ओके, सिगरेट पीना शरीर के लिए ठीक नहीं, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। सिगरेट के बॉक्स के ऊपर भी लिखा हुआ है, उसमें चित्र भी दिखा देते हैं कि देखो कैसे माउथ कैंसर होता है, पर फिर भी व्यक्ति की जीवा की जो टेस्ट है वो छूटती नहीं है, वो जानबूझकर पीता है, क्योंकि विषय का आवेश इतना तीव्र है। इसके वजह से अगर उनको पता भी चल जाए कि भगवान कृष्ण की भक्ति करके वह मुक्त हो जाएंगे, पर भी प्रॉब्लम क्या है, विषय का आवेश इतना है, तीव्र है, उनको लगता है कि यस देयर इज़ नथिंग बिगर देन सेक्सुअल लाइफ, देयर इज़ नथिंग बिगर देन मनी। तो ये आवेश है विषय का, और तब तक नहीं छूटता जब तक कोई प्रामाणिक गुरु की कृपा उस पर नहीं होती है। हम पर भी विषय का आवेश था ना पहले, हमको भी लगता था यही जीवन का लक्ष्य है, खाना पीना सोना मैथुन करना यही जीवन का लक्ष्य है, तो वैसे ही जी रहे थे, वैसी योजनाएं बन रही थी। अकस्मात सौभाग्यवश किसी साधु की कृपा होने की वजह से हम प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पढ़ लिए और इससे हम में परिवर्तन आया, नहीं तो हम में कहाँ इतनी बुद्धि। तो इसलिए बिना कोई प्रामाणिक गुरु के सानिध्य में आकर व्यक्ति इससे बाहर, इस विषय वस्तु के आवेश से बाहर नहीं आ सकता। विषय इंद्र तृप्ति इतनी तीव्र है, उसमें व्यक्ति अंधा हो सकता है। कामांध नैव पश्यति। So they look upon contact with the senses, sorry, so they look upon heaven, although heaven is still in the material existence, as being the supreme goal। This is because in heaven there is neither old age or no sickness, everything is beautiful and wonder to behold, and the facility to
Okay. And the facility to enjoy fully is increased 1,000-fold. यहाँ पे जो आनंद लेंगे वैसे 1000 गुना आनंद स्वर्ग में मिलता है व्यक्ति को. बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं आती, पर इनको ये नहीं समझता कि एक दिन ये भी नष्ट होने वाला है. तेत्वम भुक्तो स्वर्गलोकम विषाणम क्षिणे पुण्यम मर्त्यलोकम विशंति. कृष्ण इसका भी उत्तर देते हैं. ठीक है, तुम मान भी लो अगर स्वर्ग में भी सब आनंद है, 1000 गुना 1000 बेहतर है भूलोक से, पर फिर भी है नश्वर होगा. तुम्हारे फल खत्म होने के बाद तुमको फिर से भूलोक में आना पड़ेगा. By being born into situation of opulence and prosperity allows ample means and facility to perform very extremely the various prescribed rituals such as astrologically perform activities on the auspicious day each month such as Purnima to obtain the maximum result. तो कई ऐसे विधियां स्वर्ग में जाने के लिए की जाती है पूर्णिमा में. अगेन एंड अगेन फ्रॉम बॉडी टू बॉडी कंटिन्यूस रिवॉल्व. फिर क्या होता है, स्वर्ग में जाता है, फिर ऊपर नीचे आता है, फिर वो यज्ञ करता है, फिर स्वर्ग में जाता है. ये साइकिल चलता रहता है. In such special situations, Indra, the ruler of the gods, sometimes appoints one of them as a Gandharva, celestial musician, or as an Apsara, celestial damsel, among the demigods for the duration of time their merit warrants. तो कई कह सकते हैं कि what about woman? If the man gets a beautiful Apsaras, what about woman then? Even the woman can become Apsara. Okay, तो स्वर्ग में इंद्र कैन अपॉइंट एनी पर्सन, जो व्यक्ति बहुत पुण्यवान है, बहुत यज्ञ अच्छी तरह से किए हैं, तो उनको गंधर्व बना सकता है, किसी को अप्सरा बना सकता है. तो ये इंद्र के पास शक्ति होती है, पर फल खत्म होने के बाद वो भी पोजीशन से उसको हाथ धोना पड़ेगा. तो ये कमेंट्रीज है, बहुत डिटेल कमेंट्रीज दिए गए हैं आचार्यों ने. सो हियर वी विल अगेन वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट वर्स, दैट इज 2.44. सो अभी तक 2.42 43 कंबाइंड वर्स में हमने सुना कि कैसे नाम मात्र जो वेदवादी हैं, वेद को मानने वाले या वेद को फॉलोअर्स अपने आप को कहने वाले, ऐसे लोग भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं बल्कि स्वर्ग की प्राप्ति यही गंतव्य समझते हैं और उसके लिए यज्ञ आदि करते हैं, पर इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको यो भी नश्वर है. दैट इज़ ऑल्सो टेम्पररी एन्जॉयमेंट. तो व्यक्ति की बुद्धि क्यों नहीं काम करती? क्योंकि कामना से पूरित है और उनको प्रामाणिक गुरु की शरणागति नहीं होने की वजह से, आचार्य उपासना नहीं है अथवा आचार्य की कृपा नहीं है, इसके वजह से वो इसमें फंसता चला जाता है. तो नेक्स्ट वर्स इसमें दिखाते कैसे व्यक्ति फंसता है और फिर वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता. भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रतचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धिः समधाओ न विधीयते. भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग ऐश्वर्य सिंपल शब्द है. प्रसक्ता, वन हु इज वेरी अटैच्ड. ओके, भाव प्रभाव तीव्रता शब्द में लाने के लिए प्र यूज किया गया है यहाँ पे. सो इन द माइंड ऑफ दोज हु आर टू अटैच्ड टू सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मटेरियल ऑपुलेंस, भोग ऐश्वर्य, and who are bewildered by such things, तया अपरत चेतसाम, उनकी चेतना ठिकाने पर नहीं है ऐसे व्यक्तियों की. व्यवसायत्मिका, फिक्स्ड इन डिटर्मिनेशन विथ फुल कन्विक्शन, बुद्धि, भक्तिमय सेवा करने की बुद्धि, समधौन विधीयते, ऐसे व्यक्ति में कभी नहीं आ सकती. भगवान के प्रति भक्तिमय सेवा करना ऐसी बुद्धि से, कई बार हम देखते हैं ज्ञान देने के बावजूद भी विज्ञान में परिवर्तन नहीं होता है. कई बार हम किसी को सलाह भी देते हैं फिर भी वो नहीं कर पाते हैं. चाहे वो कभी पति पत्नी को समझाते, पत्नी पति को समझाते, चाहे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माता पिता को समझाते. भक्ति में कई बार कोई भक्त होता है, नहीं भक्त होता है, क्योंकि भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, उनकी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उनकी बहुत तीव्र हैं. सो परपट समाधि मीन्स फिक्स्ड माइंड, फुल एब्जॉर्प्शन. सो दे आर एब्जॉर्ब्ड, वो अपने सपनों में ही पूरी तरह खोए हुए हैं. द वैदिक डिक्शनरी द निरुक्ति सेज सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्मतत्वं यथात्म्यम
When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. आत्म साक्षात्कार करना भी समाधि स्तर है. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. तो समाधि तब तक नहीं जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा, तब तक समाधि का तो विषय ही छोड़ देना चाहिए उसने. ओके, क्योंकि वह माया द्वारा ग्रस्त है. मामेव प्रपद्यन्ते मायामितं तरन्ति. जब तक माया की शरण ली हुई है व्यक्ति, इंद्रिय तृप्ति की शरण ली हुई है, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं. भगवान की शरण जो लेता है माया को लांघ सकता है. इसे जो भोग ऐश्वर्य में है, इसलिए वो दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकता. इसलिए कई बार आप देखते हैं भक्ति तो औपचारिक तौर पे व्यक्ति करता है, पर उसमें विरक्ति नहीं है, या तीव्रता नहीं है, या प्रगति नहीं है. तो इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी द मेन रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज वेरी मटेरियल अटैच्ड. इसलिए हरिनाम लेने का अपराध भी है. हरिनाम में अपराध भी है कि 10वां अपराध, हरिनाम के विषय में इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना. ओके, डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू मेंटेन आर मटेरियल अटैचमेंट्स, ये बहुत डेंजरस है एंड इट्स डेट्रीमेंटल इन प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस. सो इसलिए उपदेश अमृत में 6 विनाश करने वाले जो कारण है, आप देखेंगे ध्यान से समझेंगे इसको, वही है. अत्याहार, आवश्यकता से अधिक जिह्वा की तुष्टि करना. अत्याहार करना वो तो जिह्वा की क्या, सभी इंद्रियों की तुष्टि करना, चाहे वो देखना हो, चाहे वो सुनना हो, चाहे वो जिह्वा से करना या जनेंद्रिय के काम हो. अधिक आवश्यकता से अधिक करेंगे. अत्याहार, प्रयास, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, फिर प्रॉपर्टीज लेना, दैट इज ऑल्सो डेट्रीमेंटल इन प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस. अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प. ओके, जिह्वा पर कंट्रोल ना होना, कुछ भी अनाप शनाप इधर उधर की बात करते रहना, समय को व्यर्थ गंवाना. प्रजल्प, नियम आग्रह, और नियमों को तोड़ना जानबूझकर, और नियमों का पालन करना सिर्फ नियम के लिए, दिखावे के लिए, सार को न ग्रहण करना. अत्याहार, प्रयश्च, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च लवल्यम च, और असत्संग करना. जनसंगश्च लवल्यम च, लवल्यम यानी लोभ होना, भौतिक संपत्ति का लोभ बढ़ाना. तो जनसंगश्च ऑल्सो असत्संग है, स्त्री संग अथवा स्त्री संगी संग. सो ये सब विनाशकारी है भक्ति के लिए. इसलिए भोगैश्वर्य भी इससे समझ सकते हैं कि व्यक्ति दृढ़ता से भक्ति नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट वर्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. उसके पहले आचार्य कमेंट्रीज में क्या लिखा है देखते हैं इसमें. यस, 2.44 वर्स में श्री माधवाचार्य is saying that Arjun may query why the Supreme Lord speaks about things providing pleasures of heaven. This is clarified by the Supreme Lord in this verse. In verse 42, beginning from Yam to word Taya, in verse 44, it can be ascertained that if salvation is the fruit, then any heavenly pleasures are merely the flowers. तो भगवान बहुत सुंदर यहाँ पे वर्णन करते. यहाँ मध्वाचार्य का अंडरस्टैंडिंग बहुत यहाँ पे सुंदर है कि यहाँ पे तो याम्यम पुष्पितम वाचम लिखा है ना, फ्लावरी लैंग्वेज, पर फ्लावर सब कुछ नहीं है ना, इसके ऊपर क्या है, फल है ना. तो हेवनली प्लेजर्स में भी फ्लावर्स हो सकते हैं, पर अल्टीमेट साल्वेशन जो है, मुक्ति जो है, वो फल है. सो वन शुड ट्राई फॉर मैंगो एंड नॉट द फ्लावर्स ऑफ द मैंगो ट्री. Those who revel only in the words of the Vedas are known as Vedavadarataha.
They speak only of reveling in the pleasures derived from actions. The instructions and injunctions within the Vedic scriptures should be known to be applicable solely to the Supreme Lord and no other. It is the knowledge of the Supreme Lord that is to be sought and understood. Veda पुराणे रामायणे वेद रामायणे पुराणे च इतिहास आगमे आदि अंत च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते. हरि का ही गुणगान सभी शास्त्रों में किया गया है. It is the knowledge of the Supreme Lord that is to be sought and understood, and this is what is to be achieved by all living entities to make their life in the material existence successful. So those living entities who are unable to understand the reality of the Supreme Lord Krishna's unimpeachable position and thus unaware cannot have the realization of him as the supreme ultimate controller of all the worlds, both spiritual and material. So जो भोग में लिप्त ऐसे लोग कभी भगवान की भगवत्ता को नहीं समझ पाते, उनकी महिमा को नहीं समझ पाते. Even if they be sincere, receptive, qualified and noble beings without receiving bona fide instructions from the Vedic scriptures from one in them, जब तक उनको प्रामाणिक गुरु नहीं मिलेंगे, भले ही व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, भोग कर रहा है पर कितना ही पोलाइट क्यों ना हो, कोई भी कितना ही धार्मिक क्यों ना हो, पर भोग विलास में कर जी रहा है, ऐसा व्यक्ति को जब तक प्रामाणिक गुरु प्रामाणिक संप्रदाय से कृपा नहीं मिलेगी तब तक व्यक्ति उससे फंसता ही चला जाएगा, एंडलेसली अगेन एंड अगेन इनटू फिजिकल फॉर्म इन द मटेरियल एग्जिस्टेंस. बारंबार जन्म होगा उसका. But for those living entities who are able to understand the reality of the Supreme Lord Krishna's unparalleled position and realize that he is the ultimate controller of all the both worlds, both spiritual and material, they are never put into jeopardy, and even if they accrued some demerits and had to accept some karma which are reactions to previous actions, the karma would definitely all be nullified within the lifetime as these living entities of the spiritual intelligence receive the special blessings of the Lord. जो भगवान से शरणागत है, जो भगवान की भगवत्ता को समझता है और समझता है कि अंतिम गंतव्य भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना है, भले इसमें कुछ छोटे मोटे गलत कर्म भी कर लेता है अगर, या उससे कुछ पाप हो जाता है, तो वो इसी जन्म में उसके धुलवे जाएंगे. भगवान कृष्ण की कृपा से वो इसी तरह में शुद्ध हो सकता है. So those living entities who perform comprehensive sacrificial activities prescribed by one in the authorized line of disciplic succession for the satisfaction of the Supreme Lord Krishna. So the living entities who perform comprehensive sacrificial activities prescribed in one of the authorized line of disciplic succession for the satisfaction of the Supreme Lord Krishna, but who are in reality opposed to the supremacy, even if they have not acquired any demerits, even they have satisfied their preceptor with gifts, even if they have manipulated themselves to attain some fleeting pleasures in the heavenly realms, still, when whatever merit they have accrued is exhausted, they will sink back down to worlds of darkness. Others who remain inimical to the Supreme Lord Krishna and who are inimical to the spiritual knowledge revealed in the Vedic scriptures go directly to the worlds of the darkness of the death of the physical body without enjoying any of the heavenly realms. यहाँ पे दो लोगों की बात की है जो धार्मिक यज्ञ करते हैं पर भगवान की महत्ता को नहीं स्वीकारते हैं. यज्ञ आदि करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, दान भी करते हैं, ओके, भोजन का भी वितरण करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी वो व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वर्ग में जाएंगे और फिर उनको नीचे के लोकों में ढकेला जाएगा. और यहाँ की बात करें जो व्यक्ति पहले से ही नास्तिक है, वो भगवान से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति तो सीधा नरक में उसको जाना पड़ेगा बिना कोई स्वर्ग के आनंद लेते हुए. सो एक कमेंट्री में मध्वाचार्य कमेंट्री में हमको मिलेगा. ओके, सो नेक्स्ट वर्स नंबर 45. त्रयगुणय विषया वेदा निस्त्रय गुणयो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान.
The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes, be free from all dualities and from all anxieties, for gain and safety, and be established in the self. वेद शास्त्र तीन गुणों के अंदर है, तो अर्जुन को ये सलाह दे रहे हैं भगवान कृष्ण की, अब तीनों गुणों से ऊपर दिव्य स्तर पे आ जाओ और द्वंद्व से बाहर निकल जाओ और सभी चिंताओं से बाहर निकलो कि क्या लाभ है क्या हानि है, इस विचार को छोड़ दीजिए और आप आत्म साक्षात्कार करो, अपने अस्तित्व को समझो। आत्मवान, जैसे धनवान जिसके पास धन है, आत्मवान यानी जिसके पास आत्मा है। इसका मतलब आत्मा तो सबके पास है, पर आत्मयान यानी व्यक्ति को पता है, फिर साक्षात्कार है कि वो आत्मा है। सो ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन्वॉल्व एक्शंस एंड रिएक्शंस इन द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। पूरा संसार तीन गुणों से बंधा हुआ है। त्रिगुणमयी एवेर भावर एदिम एवि सर्वम इदम जगत, पूरा जगत तीन गुणों से भरा हुआ है। त्रिभिर गुणमय भावर। They are meant for these actions and reactions are meant for all material activities involve actions and reactions, three modes of material nature. They are meant for fruitive results which cause bondage in the material world. ये तीन गुण किसके लिए हैं? बंधन में डालने के लिए जीव को। The Vedas deal mostly with the fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. ओके, जैसे कहा कि साधारण लोगों को ऊपर लाने के लिए वैदिक शास्त्रों में ये सब वर्ण आए हैं। The Vedas deal mostly with the fruitive activities to gradually elevate the general public. Okay. Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jigyasa or question on supreme intelligence, transcendence. Sorry. All the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. भगवान ने जब सृष्टि की तभी जीवों का आदेश भी दिया, ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया। फिर ब्रह्मा जी ने ज्ञान पास ऑन किया कि कैसे इस सृष्टि में जीना है और ऐसे कैसे हम यहाँ से मुक्त भी होना है। So when the activities of sense gratification, namely the कर्मकांड chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of Upanishad. जैसे कर्मकांड समाप्त होने के बाद, कर्मकांड का विधि विधान से व्यक्ति उबने के बाद व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है, ज्ञान मार्ग को अपनाता है। उपनिषद, which are part of different Vedas, as the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata. The Upanishads mark the beginning of transcendent life. तो पहले कर्मकांड है, कर्मकांड में क्या है? सकाम कर्मी लोगों के लिए है। फिर व्यक्ति सकाम कर्मी बनकर सब कामनाओं की पूर्ति करके उब जाता है, तभी वह ज्ञान कांड को अपनाता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। न्यूट्रल स्टेज में, as long as the material exists, body exists, there are actions and reactions in the material world. One has to learn tolerance in the face of dualities such as happiness and distress or cold warmth, and by tolerating such dualities become free from anxieties regarding gain and loss. This transcendental position is achieved in full Krishna consciousness when one is fully dependent on the goodwill of Krishna. भगवान गीता में सेकंड अध्याय में स्टार्टिंग में कि मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय, व्यक्ति को धीर सत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति, धीर बनना चाहिए, व्यक्ति को विमोहित नहीं होना चाहिए। फिर भी ये जो स्तर है कि व्यक्ति सम दुख सुखे, दुख में सुख में समान होगा या हानि और लाभ में समान होंगे, कैसे आ सकता है? भगवान कृष्ण की कृपा से। जब तक भगवान कृष्ण नहीं चाहेंगे तब तक ये उदय नहीं हो सकता, विरक्ति। सो what one has to do for this is that, अगर हमको लिबरेट होना है ये सब चीज़ों से, we have to come on the liberated platform, त्रय गुण विस्तार या दिव्य स्तर पे आना है, हम तीन गुणों से ऊपर आना है, तो व्यक्ति को अपनी शरणागति बढ़ानी पड़ेगी। वी शुड बी कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द गुडविल ऑफ कृष्णा। भगवान कृष्ण हमें रक्षा करेंगे, इस बात को व्यक्ति पर पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ भगवान की भक्तिमय सेवा करने से व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर आ सकता है।
मान लीजिए व्यक्ति भौतिक धन को कमाने के लिए पूरी तरह जुटा है तो उसको रजस गुण में है, या व्यक्ति कोई दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सदैव जी रहा है वो तमोगुण है। तो सत्वगुण में व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति शांत चित्त रहता है, उसको भले ही साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार भले ही ना हो, ज्ञान है कि वो अस्तित्व क्या है, शांत रहता है। पर इससे भी ये भी 3 गुण के अंदर सत्वगुण भी बंधनकारी है। सत्वगुणी व्यक्ति भी को अहंकार होता है कि मैं दोनों रजोगुण और तमोगुण से बेहतर हूँ और मैं और संसार में सुखी हूँ, ये भावना आ जाती है सत्वगुण को। तो तीनों गुणों से ऊपर आने के लिए कृष्ण कहते हैं। So this is the purport and then Acharya commentaries. So in the Acharya commentaries 2.45, Sridhar Swami says that अगर स्वर्ग जाना अंतिम गंतव्य नहीं है तो वैदिक शास्त्र क्यों उनके बारे में बताते हैं, क्यों इनके बारे में विधियां हैं। तो मेदास एक्चुअली मेनली डील विद दोज एस्पिरेंट्स हु इन्फ्लुएंस बाय फ्रूट डिजायर, सकाम कर्मी लोगों के लिए ये है। ओके, इनको किस इंसेंटिव दिया जाता है तुम थोड़ा ये धार्मिक कार्य करने से। इसलिए अर्जुन को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान कृष्ण पहले ही कह रहे हैं कि तुमको 3 गुणों से ऊपर आना है। ओके, Madhvacharya is saying that the Vedic scriptures give the outward appearance of having as their purpose in relating how those living entities, goodness, passion, ignorance can achieve the joys of the heavenly spheres. But the Vedic scriptures also contain confidential meanings. वेद शास्त्र में बाह्य ज्ञान भी होता है, आंतरिक ज्ञान भी होता है। कई चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं कि हाँ ये ठीक है, पर आंतरिक ज्ञान भी होता है कि सबसे कॉन्फिडेंशियल क्या, सबसे सीक्रेट क्या चीज़ है, गुह्य ज्ञान भी होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से अपेक्षा करते तो बाह्य ज्ञान को सिर्फ मना अपनाओ, आंतरिक ज्ञान को समझो। एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वेदिक स्क्रिप्चर से नहीं जाना चाहिए हमको। अंडरस्टैंड वेदिक स्क्रिप्चर्स बाय द लाइट ऑफ द कॉन्फिडेंशियल मीनिंग्स, इसलिए बोनाफाइड गुरु चाहिए, बोनाफाइड संप्रदाय से बोनाफाइड गुरु चाहिए। When Vedic scriptures speak as dharma is righteousness and whatever is contrary to righteousness is spoken of as adharma, in Vedic scripture the supremacy of Supreme Lord Krishna as ever residing within the heart of every living entity is declared, and anything in harmony with his understanding is known as dharma. भगवान कृष्ण सर्वोपरि है, भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, इस सिद्धांत के अनुरूप कोई सिद्धांत है तो वो धर्म है। अगर इस सिद्धांत के विरुद्ध कुछ भी सिद्धांत होगा तो वह अधर्म है। ऐसे डेफिनेशन ये दे रहे हैं, मध्वाचार्य दे रहे हैं। सुप्रीम लॉज विद इन एवरी लिविंग एंटिटी, recognizing the eternal truth is spiritual intelligence and it is understood to be an eternal principle of existence. This clearly, okay, when Lord Krishna speaks about being free from gain and preservation, this does not mean to deny the things one need to survive or flourish, but relates only to having desire for acquisition possessions. ओके, व्यक्ति को विलाप नहीं करना चाहिए, भौतिक आसक्ति नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाना पीना छोड़ना है। ओके, ये तो इसका मतलब नहीं है। अननेसेसरीली कोई गुड्स को होल्ड करना, अपने पास रखना, even if it is not a necessity, you can live without that, but still you are piling up things. ओके, आप अगर एक घर लेके रह सकते तो 4 घर लेने की क्या आवश्यकता है, ये पॉइंट है। The living entities possessing noble attributes, being ever in goodness, illuminated in the self of the soul, becomes an ever source of illumination. Okay, so one can be illuminated when he continuously remember Lord Krishna. So every, मान लीजिए कोई अगर कहता है कि ये शास्त्र में लिखा है, तो शास्त्र में क्यों लिखा है ये स्वर्ग में जाने के लिए, तो ये इसको ये उत्तर है कि सर्व विधि निषेधेषु एतयोर एव किंकर, शास्त्र के सभी विधि और निषेध एक ही पर्पस को सर्व करते हैं।
एक ही सिद्धांत की सेवा करते हैं। वो सिद्धांत क्या है? स्मरतम स्मरतम विष्णुर विस्मरतम न जातुचित। सदैव भगवान विष्णु का स्मरण करना, उनको कभी नहीं भूलना। तो अगर कोई भी यज्ञ कर रहा है, अगर विष्णु को भूल गए तो वो यज्ञ व्यर्थ हो गया। सो नाउ श्री रामानुजाचार्य also, यार द टर्म refers to three groups of living entities यहाँ पे। त्रैगुण विषय इज सत्वगुण रजोगुण तमोगुण एंड so if the Vedic scriptures did not address these three classes according to their inclinations by prescribing the appropriate method of attainment of the heavenly spheres, then those living entities under the influence of passion and ignorance would be adverse to goodness, hindering their own progress. तो व्यक्ति ऐसे लोग रहेंगे जो सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो उनके लिए कोई ना कोई विधियां होनी चाहिए, नहीं तो पूरे उथल पुथल हो जाएंगे संसार में। तो कुछ ना कुछ उनको आनंद देने, उनको भी कुछ विधियां होनी चाहिए। ऑल्सो दे वुड बी इन डार्क एज टू हाउ टू एडवांस देम, उनको समझेगा ही नहीं कि वो ऊपर कैसे आए। फिर कोई व्यक्ति में कोई त्रुटियां हैं, जैसे मैंने कोई हैंडीकैप व्यक्ति है, अगर उसके लिए कोई सुविधाएं नहीं देंगे तो ऊपर कैसे आएगा, वो कैसे व्यक्ति जी सकता है? तो उसको सुविधा ही देनी पड़ेगी। वैसे ही तमोगुण का व्यक्ति है, रजोगुण का व्यक्ति, उसको भी कुछ सुविधा देनी, कैसे ऊपर आ सके, कैसे वो चल सके, आगे बढ़ सके, इसे सब विधियां दी जाती हैं। बट आइडियली वन शुड फ्री देमसेल्फ फ्रॉम पैशन एंड इग्नोरेंस एंड डिवोट वनसेल्फ टू इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ गुडनेस फुल्ली। व्यक्ति को सत्वगुण में आना है एक्चुअली। सो योर वर्ड Niryogakshema, meaning one is completely unconcerned about acquiring any other advantage part from the realization of the soul and the means to effect that end. By this method, one becomes Atmavan. Okay. So, if one conducts oneself in this manner and remains fixed, the influence of passion and ignorance will cease and goodness will begin. Okay. So, व्यक्ति को निर्योगक्षेम आत्मवान is like व्यक्ति को कोई भी स्वर्ग की अभिलाषा नहीं, अन्य अभिलाषा शून्यम, ऐसा व्यक्ति आत्मवान बन सकता है, आत्म साक्षात्कार की बात कर सकता है, और व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ऊपर जा सकता है, और सत्वगुण इसमें प्रोमिनेंट हो जाएगा फिर, और अंततोगत्वा सत्वगुण से भी उभर जाएगा भगवान कृष्ण की भक्ति में, सेवा में व्यक्ति रहेगा तो। दैट्स वाई अगर नहीं करेंगे, स्वर्ग की अभिलाषा करते व्यक्ति फंसते चला जाएगा। सो इफ द वेदास एक्सेप्ट, केशव कश्मीरी सेइंग दैट इफ द वेदास एक्सेप्ट उपनिषद्स वर नॉट टू रिवील an elaborate way for those within the three words to benefit themselves according to three modes of nature, material nature, then those locked in the cycle of birth and death would forfeit both their opportunities. सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं केशव कश्मीरी कि अगर वेद में ऐसी चीज़ नहीं लिखेंगे जो कर्मकांडी लोगों के लिए अथवा राजोगुण तमोगुण के लिए, तो वो कैसे उभर सकते हैं, वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं फिर। सो So it is justly so that the Vedic scriptures deal with the three modes of nature. Sorry, but Lord Krishna is instructing Arjuna to be free from desires of reward. तो आगे जैसे कहेंगे कर्मण्यवादी कारस्ते, तो व्यक्ति को कर्म करना है फल से रहित, तो व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग के बारे में बताएंगे, इसलिए ऊंचा सिद्धांत होगा। सो व्यक्ति को ग्रेजुअली कैसे तीन गुणों से ऊपर आना है। ओके, सो यज्ञ करना और स्वर्ग की अभिलाषा करके यज्ञ करना, तो कर्मयोग में आएगा ही नहीं फिर। सो ऊंचा सिद्धांत तो आगे बताएंगे इसमें। So in all this, one with worldly possession, desirous of increasing and protecting them, may wonder how they may maintain themselves in material nature. To this, Lord Krishna reiterates, Niryogakshema becomes free from conception, acquisition, and preservation. How then would one sustain their lives? By Atmavan, firmly established in the consciousness of the soul. The essence is not to understand that the Supreme Lord is the fulfiller and bestever of all desires. So one should only seek his refuge and accept his shelter, never fear nor seek any other shelter from any other source
that supreme lord will provide all sustenance and maintenance to those who understanding him has fully surrendered. तो भगवान यहाँ पे निर्योग, यहाँ पे श्लोक में, इस भगवद गीता के श्लोक में आप देखेंगे कह रहे हैं कि निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेमात्मवान। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुमको निर्द्वंद्व होना है, दोनों द्वंद्व से ऊपर उभरना है। नित्य सत्वस्थ व्यक्ति को एकदम शुद्ध सत्व, प्योर सत्व, सत्व गुण में रहना है, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में रहना, आध्यात्मिक बुद्धि में रहना है। निर्योग क्षेम, व्यक्ति को कुछ लाभ और संरक्षण का कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं कि वो आत्महत्या करने वाला, इसका मतलब ये नहीं कि ही विल पनिश हिमसेल्फ। इसका मतलब है भगवान के प्रति शरणागत जाके कि भगवान ही उसके पालन करता है, भगवान ही उसके रक्षण करता है, ये समझना। एंड वही उनके सूर्य हैं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता माम योगम क्षेमम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से भक्तिमय सेवा करने से भगवान उसकी सभी कमियों को पूरी करेंगे, ये पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी वो 3 गुणों के ऊपर आ सकता है। सो हियर वी एंड इन वी जस्ट रिवाइंड व्हाट वी हैव डन, कि इस वर्ष में कि व्यक्ति भगवान कृष्ण वेदवादी लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो वेदवादी लोग हैं नाम मात्र वेद के फॉलोअर्स हैं और सिर्फ कर्मकांड से वो आसक्त हैं और स्वर्ग आदि की अभिलाषा करते हैं और उनको समझते यही सब कुछ है। ऐसे लोग जो हैं भोग ऐश्वर्य में लिप्त होने के कारण वो भगवान की भक्ति दृढ़ता से नहीं कर सकते। इसलिए अर्जुन को कहा जा रहा है कि तुम तीनों गुणों से ऊपर आ जाओ और इस वेदवादी के लोगों तक न रहो और तुम निर्योग सत्व गुण में स्थित हो जाओ। तीनों गुणों से ऊपर होकर शुद्ध सत्व स्तर पे आकर तुम हानि और लाभ और संरक्षण की चिंता मत करो, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में संलग्न हो, जिससे वो 3 गुणों से ऊपर आ सकता है। तो जब तक 3 गुणों से ऊपर नहीं आएंगे तब तक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लिबरेशन। हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन? कभी कभी जैसे अग्नि में तेल डालने से अग्नि और भड़क जाती है। मनुस्मृति में कहते हैं कि आप अगर इंद्रिय की तुष्टि करेंगे तो और भड़कने वाली है। सिमिलर विद द मैरिटल रिलेशनशिप, when you enjoy sensual sexual life then definitely you feel like having more. So the point is that, but एक point आ जाता है जब अग्नि में कुछ ज़्यादा ही तेल एक साथ एक्सेस में डाल देंगे। अग्नि छोटी है बट आप उसमें तेल भारी मात्रा में वॉल्यूम में डाल देंगे जोर से, तो पॉइंट द थिंग इज़ दैट ये एक्सेप्शन केस होता है ऑल्दो, बट इसमें क्या है बहुत भारी मात्रा में तेल, अग्नि छोटी है प्रज्वलित हुए है, इसमें अग्नि बुझ जा सकती है। सिमिलरली विद द मैरिड रिलेशनशिप ऑल्सो, व्हेन कंडू यनेन करोयोरिव दुःख दुःखम, इट्स एन इचिंग सेंसेशन। When you itch, you will feel more to itch, but a continuous itching will lead to you will land into some disease, some infection. Then you are forced not to itch. Then, no matter how much itching will happen, that time you will take some treatment to cure the itching, and you will be careful not again to do that. तो जब भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु आते हैं तब आप एक बार करने से फिर से वो तीव्रता से आपकी इच्छा और जागृत हो जाती है। पर जो व्यक्ति थोड़ा धार्मिक धर्म के अंदर जब इन इंद्रिय तृप्ति का पालन करता है, फैमिली ही इज मैरिड टू ओनली वन, डेफिनेटली दिस dharma is not allowing to have extramarital relationship. Forget about those people जो धर्म को नहीं मानते, उनका तो क्या कहना था, they will change their partners, that's it. बट वो धर्म को मान रहा है तो वो नहीं करेगा, तो he will have stick to one partner, but कुछ दिन के बाद क्या हो जाएगा, they will not be so much attracted physically and they will seek something which is beyond that. अगर धर्म पालन किए हैं तो ऑब्वियसली, धर्म पालन नहीं किया तो प्रश्न ही नहीं उठता है, तो फिर उसे पैसे और इसमें चक्कर में रहेंगे। बट अगर एक धर्म पालन किए हैं तो अपने आप इस चीज़ से उब जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव
मटेरियल एंजॉयमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम. एज सच बॉडी भी जवाब देगा कुछ दिनों के बाद. दैट इज ऑल्सो दैट. सो उब जाना मतलब ऑब्वियसली धर्म पालन करने वाला व्यक्ति उब जाएगा इस चीज़ से. अगर वो सिंसेरिटी से यज्ञ आदि करता है और इस साथ में इंद्र तृप्ति भी कर रहा है तो ग्रेजुअली ही विल अपलिफ्ट. सो सेफर साइड ये होता है कि बेटर इवन इफ यू वांट सम मटेरियल एंजॉयमेंट बेटर वर्शिप कृष्ण. अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. बोल नहीं सकते कि यही जन्म में हो जाएगा वो. इट कैन टेक मैनी बर्थ्स ऑल्सो. जैसे बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. कर्मी लोगों को क्या कहना, ज्ञानी लोगों का भी स्थिति देखिए कि कई जन्मों के बाद वो कृष्ण के पास आएंगे. तो ज्ञान तो मध्य स्तर है ना. कर्मी का पहला स्तर है लोअर क्लास कर्मी. देन ही एंटर्स इनटू ज्ञान मार्ग. न्यूट्रल स्टेज है जिसमें न्यूट्रल गेयर न्यूट्रल हो जाता है. देन एक्सीलरेटर. तो न्यूट्रल स्तर पे व्यक्ति ना भौतिक आनंद चाहता है ना उसको आध्यात्मिक रस के बारे में कुछ पता है. ये विरक्ति की स्थिति है वो न्यूट्रल स्तर पे. ज्ञान उपनिषद, इसी उपनिषद का अध्ययन उस समय पे किया जाता है. और मोस्टली निराकारवादी बन सकते हैं ऐसे लोग, ब्रह्मवादी बन सकते हैं. ये चांसेस ज़्यादा होते हैं इस चीज़ में. एंड फिर ग्रेजुअली कई जन्मों के बाद ही विल कम टू कृष्ण. तो उब जाते हैं, ऐसे नहीं कि उब जाते हैं. शास्त्र में लिखा है आदि अंतवंत कौनते नतेषु रमते बुधा. इसका सुख का आदि और अंत है. तो यू कैन नॉट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम. इट इज़ देयर क्लियर. ओके, thank you so much. Any other question? If you don't have, you may stop here. Okay. Hare Krishna. Gauranga. Hare. Srila Prabhupada की जय.